what this problem says is that there is a load that is applied, but that load is not at the center, it is eccentric. Okay? And it is off of the center by some distance. Okay? Now, this side of the weldment, on this side the weldment has length L1, and on this side the length of the weldment is L2. And the other dimensions are given to you. For example, this is 2 inches, 2 inches, and the thickness is 3 by 8 inches. Now, so what does he say? And he says find L1 and L2. What should be the lengths of these welds so that there is, so that we can oppose the moment that is caused by this F. Okay. So how are we going to go for that? Can someone tell us? जी. सर फोर्स और स्ट्रेंथ की इक्वेशन हम यूज करेंगे, दो इक्वेशंस आएंगे और दो अननोन है, तो उससे हम कंपेयर करके कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पे देयर इज अनदर, मतलब देखिए यहाँ पे सिर्फ फोर्स नहीं है, बल्कि इफ दिस इज ऑफ सेंटर तो यहाँ पे मोमेंट भी है. ठीक है जी. तो यहाँ पे हमारे पास मोमेंट भी है, एंड वी आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ दैट. बल्कि वो बात भी कर रहा है कि ही इज सेइंग दैट इट इज अनसिमेट्रिकल, सो नो मोमेंट टू बी रेजिस्टेड बाय द वेल्ड. तो वो कहता है कि यहाँ पे मोमेंट ना हो इस इन वेल्डमेंट्स पे. तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, यस आपकी बात बिल्कुल सही है कि वी आर गोइंग टू बैलेंस द फोर्सेस, बट वी आर आल्सो गोइंग टू बैलेंस द मोमेंट दैट वी हैव हियर इन डिजाइनिंग दिस जॉइंट, एंड वी कैन फाइंड L2 एंड L1. जी, ये लेंथ इसीलिए सर डिफरेंस होंगे क्योंकि yes. मूवमेंट पैदा होगा, तो मूवमेंट की वजह से इसने वेल्डिंग डिफरेंट की है. It is just to cover that, हाँ. It is just to cover Yes. that. इसलिए हमने L1 और L2 जो है वो हमने मुख्तलिफ लिए हुए हैं. ठीक है जी. So now let's proceed कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे. सबसे पहले अगर आपको याद हो तो ये हमने we already discussed this formula in finding out the centroid के y dash जो है या y component of the centroid will be the sum of yi ai over the sum of ai. ठीक है जी. तो since you know all the dimensions, so go ahead and put the values of these 0.75 times 2 plus 3 times आपके पास डायमेंशन, so you will be able to find this y bar. ठीक है जी. अच्छा, अब हम मोमेंट्स का सम अगर ले तो देखें द मोमेंट अगर हम b पॉइंट b के साथ, मतलब टेकिंग मोमेंट अबाउट b अगर हम ले तो वी हैव f2 here, so f2 times क्या, f2 times this dimension b should be equal to f times y bar. इसके बराबर होना चाहिए. ठीक है जी. f2 times b should be equal to f times y bar. ठीक है जी. तो अगर इसको हम लिखें so we can find out our f1 which is 10 kips. ठीक है जी. और इसी तरह we can also find out f2. ठीक है जी. that will be 24 जो हमारे पास 24 है kips minus 10 जो हम f1 कह रहे हैं. तो that will, these two are going to sum up to 24 के 10 plus 14 will be the total load. ठीक है जी. अच्छा, weld throat areas have to be in the ratio of 14:10, which is 1.4 because the forces are in this ratio, so it should be in this ratio too. तो इसका मतलब ये है कि हमारा L2 जो है that should be 1.4 times of L1 होना चाहिए. ठीक है जी. So the weld length design variables are occupied by this section. और इसी तरह by going to table 9-4 the allowable stress हमारे पास कितना है, it is 30% of the जो हमें दिया गया है E70 SY. ठीक है जी.
तो 0.3 टाइम्स 70 विच इज 21 kpsi, ठीक है जी। तो यहाँ से हम shear tau को अगर, तो that comes out to be 21 kpsi. Now shear tau on the throat कितना होगा, since we say that the maximum shear will be at 45, तो वही फार्मूला जो the one that we discussed, basically it is F over TL, ठीक है जी। तो F over TL जो है, T is equal to 0.707 H, और L हमारे पास the total length of the weldment which is L1 on one side and L2 on the other side, ठीक है जी। So the total length of the weldment is L1 plus L2, ठीक है जी। और ये हमारा क्या है, दिस इज T, तो T टाइम्स L, F ओवर T टाइम्स L, ठीक है जी। पुटिंग द वैल्यूज इन देयर, हमारे पास टाउ अलाउेबल कितना है, 21 kpsi। सो फ्रॉम विच द वेल्ड L, जो जो वेल्ड लेंथ L1 है, अगर हम उसको कैलकुलेट करें यहाँ से, ठीक है जी, so that comes out to be 2.16, और फिर हमने कहा है कि since और L2 should be equal to 1.4 times of L1, we can also calculate और L2, ठीक है जी। तो this is how we can go ahead and do that, ठीक है जी। अच्छा, now सर these जी, L2 is equal to 1.4 L1 इस स्टेप की समझ नहीं आई सर। अच्छा देखिए, हमने जब हमारे पास टोटल लोड कितना है, दैट इज 24, ठीक है जी। तो इसमें से जो एक साइड है उस पे 10 आ रहा है, दूसरे साइड पे हमने कैलकुलेट किया तो वो कितना था, 14, 14 ठीक है जी। तो हमने क्या किया कि देखिए, चूंकि ये पर यूनिट लेंथ हमारे पास, वी हैव द स्ट्रेंथ, तो इसका मतलब ये है कि ये एक साइड जिस पे 14 आ रहा है, दे शुड बी इन दिस रेशो। तो हमने क्या किया कि 14 को हमने, मतलब उसकी रेशो हमने ले ली, हमने ये किया 14/10 शुड बी इक्वल टू, मतलब F1 बाय जो जो हमारे पास F/F है, दैट शुड बी इक्वल टू, अगर हमारे पास L2 है तो L2/L1, हम वो रेशो ले रहे हैं, ठीक है जी। ओके सर। समझ आ रही है? अच्छा, तो वी आर जस्ट टेकिंग दैट रेशो की इस प्रोपोर्शन में होने चाहिए, ठीक है जी। एक तरफ फोर्स ज्यादा है, दूसरी तरफ कम है, तो उसका लेंथ भी उसी प्रोपोर्शन से कम या ज्यादा होगा, ठीक है जी। ओके सर। अच्छा, तो वी गॉट दिस। नाउ वी कैन आल्सो द shear tau इन द बेस मेटल, उसको भी हम चेक करते हैं टू द weldment। सो tau इज इक्वल टू F और HL, ठीक है जी। And that comes out to be matlab, if you put the value of L1 and L2, so that is 2.4 L1, and that comes out to be 14.4 kpsi। अच्छा, एक चीज आपने देखी होगी कि यहाँ पे हम H इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है जी, which is, what is H? सर ये जो वेल्ड की वो है फेलेट क्या जो कहते हैं, डायमेंशन है, ठीक है, हाँ बिकॉज आपकी वेल्ड की जो H है ना, दैट इज इक्वल टू द थिकनेस ऑफ द प्लेट, ठीक है जी। तो इसलिए हम H लेते हैं, यहाँ पे 0.707 टाइम्स T नहीं है, ठीक है जी। समझ आ रही है ना? वो हम वेल्डमेंट की बात कर रहे थे, ये हम बेस मेटल की बात कर रहे हैं। तो बेस मेटल का जो थिकनेस है हम वो लेंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, फ्रॉम दिस फॉर्म, तो यहाँ से आप अगर देखें तो L1 इज 2.22 और L2 आपके पास 3.11 इंचेस आ रहा है, ठीक है जी। और उसी बेसिस पे सिग्मा अलाउड जो है, दैट इज 21.6 kpsi, ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह नॉमिनल टेंसाइल स्ट्रेस भी आप चेक करें, सो दैट इज 10.7, ठीक है जी। अच्छा, तो आप कौन सा लेंथ लेंगे, कौन सा लेंथ आप लेंगे, मतलब आपने इन तरीकों से अगर, इफ यू कैलकुलेटेड योर L, ठीक है जी, तो व्हाट वुड यू डू इफ दैट सेटिस्फाइज सर। दिस? हाँ, जो 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 ज्यादा, ज्यादा हो सर जो लेंथ। ज्यादा आएगा, बिल्कुल जो ज्यादा आएगा, ठीक है जी। तो यू कैन सेट इट टू दैट, ठीक है जी।
अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें तो बेसिकली दिस इज अ प्रैक्टिकल वेल्डिंग। जो अभी हमने प्रॉब्लम्स की है ना, ये आप इलेक्ट्रोड लेके यू आर ट्राइंग टू वेल्ड समथिंग, ठीक है जी। ये एक और प्रॉब्लम है, इसे परफॉर्म एन एडिक्वेसी assessment of a statically loaded welded cantilever carrying 500 ये फिगर ये आपको दिया गया है, ठीक है जी। तो बेसिकली इट इज 3/8 inches डबल, मतलब welded on both side fillet weld. If you look at the sign and it is 6 inches फ्रॉम देयर, और आपका लोड जो है वो इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, एंड दिस इज 3/8 जो थिकनेस इसकी है, एंड this is 2 inches in this dimension is 2 inches, ठीक है जी। use the conventional method for weld metal, use the conventional method for the attachment, and use a welding code for the weld metal। अच्छा, conventional method आप इस्तेमाल करेंगे तो आप क्या करेंगे? हमने कहा ना कि वेल्डमेंट में हम कोड्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये कह रहा है कि आप कोड्स इस्तेमाल नहीं करो। पार्ट ए में वो कहता है कन्वेंशनल मेथड इस्तेमाल करो। तो कन्वेंशनल मेथड में हम क्या करते हैं? सर ये फोर्स और देखते एरिया, हैं। फोर्स और एरिया हम लेंगे, ठीक है। मतलब हम ये करेंगे कि सिग्मा इज इक्वल टू एफ बाई ए, ठीक है जी। एंड इट वुड डिपेंड कि हम कौन सा स्ट्रेस जो है वो मालूम कर रहे हैं, ठीक है। तो जो भी स्ट्रेस हम मालूम कर रहे हैं उसके लिए फोर्स कितना है और उसके लिए एरिया कितना है, ठीक है जी। तो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। तो उसी तरीके से गो अहेड एंड डू दैट, ठीक है जी। पहले आप एस वाई एस यू टी की वैल्यूज मालूम करें, फिर 9-2 सेकंड पैटर्न जो हमने पहले डिस्कस किया था, टाउ वन एंड टाउ डैश एंड टाउ डबल डैश। दिस इज बेसिकली बेंडिंग का प्रॉब्लम है। तो देखिए यहाँ पे लोड अप्लाई हो रहा है तो दिस इज बेंडिंग, ठीक है जी, बट द फोर्स इज नॉट अप्लाइड एट द वेल्डमेंट। तो 9-4 टेबल में अगर आप जाएं तो वहां से आप जो है यू कैन फाइंड आउट, वो एरिया के लिए भी फार्मूला था। लेट मी गो बैक, ठीक है जी। ये ये हमने किया था ना, ठीक है। तो इसके साथ जो पैटर्न मैच हो रहा है, यू विल टेक दैट पैटर्न एंड you will go ahead and calculate अपने जो है tau dash and tau double dash, and you combine that tau dash and tau double dash with tau, ठीक है जी। tau मालूम करेंगे और उससे you find factor of safety, ठीक है जी। so that is 3.39। और दूसरे में दूसरे तरीके में आप कोड से मालूम करेंगे। तो फ्रॉम द कोड जो है मतलब पार्ट सी जो है वो कहता है कि कितना अलाउेबल है, और ये इलेक्ट्रोड है, सो यू विल जस्ट कंपेयर दोस, ए बी सी आपके पास कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है जी। नाउ दिस इज द एंड ऑफ द वेल्डिंग पोर्शन, ठीक है जी।